We will go on question number 11. We'll go on question number 11. A Limited maintains a margin of safety of 37.5% with an overall contribution to sales ratio of 40%. Its fixed cost is 5 lakhs. Calculate the following. So can you Calculate break-even sales, increase total the variable resolution? cost. Hello. 1 second, madam. So we need to find break-even sales, total variable cost, current profit, and new margin of safety if sales volume increased by 7.5%. तो चलो लेट्स डू इट. आपको क्या क्या दिया है सर? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, देन पीवीआर, फिक्स कॉस्ट एंड न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढने को बोला है. एमओएस रेशियो, या नाउ फाइंड क्या, कैन यू फाइंड ब्रेक इवन सेल्स? द आंसर इज यस. चलो फाइंड ब्रेक इवन सेल्स. $12,50,000 होगा मेरे हिसाब से. टोटल सेल्स, या I want you to find total sales. Get me the answer of total sales. टोटल सेल्स ही क्रूशियल है, बाकी फिर बाकी बहुत आसान है. एमओएस रेशियो, ना फाइंडिंग टोटल सेल्स. आपको एमओएस रेशियो दिए. तो break even point will be 62.5%. Accepted? Correct. Correct, sir. Yeah. And therefore, अगर if 62.5 is 12.5, 100 is how much?
20 lakhs. Yes. Total sales 20 lakhs. Variable cost PV ratio is 40%. So VCR 60%. Current profit yes last. What is the new margin of safety if sales volume is increased by 7.5%? तो बहुत सिंपल है. Existing sales 20 at 7.5%. 7.5%. 1.5. So revised is 21.5. Revised sales is 21.5%. और सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से ना ही ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ता है और ना ही पीवी रेशियो बढ़ता है, तो डायरेक्टली माइनस कर दो ब्रेक इवन सेल्स. दिस इज द एंटायर सम. एग्जाम सम था आज ही. अब ये सब्जेक्ट का एग्जाम है. Okay. अभी ये सब एक बार हो जाने के बाद व्हाट यू शुड डू इज हर एक का आंसर लिख लेने का.
Yeah, please copy. बट ये एग्जाम में वैल्यूज जो रहता है या फ्लैट्स में लिख रहे हो बट हम लोग को कंप्लीट ही लिखना है ना. Yes, let's start sum number 5. Sum number 5 एग्जाम सम है. अब ये जो भी सम्स हमने किए, ये जो अभी हमने प्रीवियस सम किया सम नंबर 11 एग्जाम सम था, ये भी एग्जाम सम है. A single product company sell its product at rupees 60 per unit. In 1996, the company operated at a margin of safety of 40%. The fixed cost amounted to 3,60,000 and the variable cost to sales ratio is 80%. In 1997, it is estimated that the variable cost will go up to 105, यानी 5% बढ़ जाएगा, and fixed cost will increase by 5%. यानी दोनों fixed cost and variable cost both are going to increase by 5%. Find the selling price to be required to be fixed in 1997 to earn the same PV ratio as in 1996. Okay. चलो, you can try this sum. फिर ऐसा भी बोला है, assume the same selling price of 60 per unit in 1997. Find the number of units to be required to be produced and sold to get the same profit as in 1996. You can try this sum. So sum number 5. 1996 selling price 60, margin of safety ratio 40, fixed cost 3,60,000, variable cost ratio कितना है 80%. तो 80% of 60, 80% of 60 48, contribution 12, fixed cost 3,60,000. Then बस इतना ही डेटा दिए, ये सब कुछ 1996 के लिए. तो क्या क्या ढूंढ निकालो. प्रॉफिट चाहिए हमें 1996 का, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट. लेकिन आपके पास एमओएस वैल्यू में नहीं है, एमओएस परसेंटेज में है. मेरे पास सेल्स भी नहीं है. ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये ढूंढ निकालता हूं ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो 3,60,000. अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है तो पीवी कॉस्ट पीवीआर विल बी 20%. तो ढूंढ निकालते हैं. चलो, $18 lakhs. आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो.
then अभी ये मिल गया तो 18 lakhs is 40% is 60%. क्यों? क्योंकि एमओएस रेशियो 40% है तो ब्रेक इवन 60% होगा तो 40 is how much? Into 40 divided by 60, 12 lakh. Therefore, MOS ये ब्रेक इवन पॉइंट था, उससे आपने MOS ढूंढ निकाला. MOS is 12 lakh. Therefore, find profit. $2,40,000 यानी 2.4 हो गया. प्रॉफिट भी आ गया. तो सब कुछ 1996 का हो गया. अब 1997 में क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 96 में वेरिएबल कॉस्ट था 48. 5% इंक्रीज हो रहा है. $50.4 variable cost of 97. Fixed cost of 96, 3,60,000. 5%, 18. Fixed cost of 97. Now they are saying हम लोग ने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1997 ढूंढ लिया, फिक्स कॉस्ट ऑफ 1997 ढूंढ लिया. ये दो चीजें चेंज नहीं होगी, ये दो चीजें कांस्टेंट है 1997 की. कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1997 will be 50.4 and fixed cost of 1997 will be 3,78,000. Now they are asking us, find the selling price required to be fixed in 1997 to earn the same PV ratio of 1996. मुझे अगर 1996 में जितना पीवी रेशियो मिल रहा था उतना ही पीवी रेशियो अगर 1997 में चाहिए तो मेरा नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस हुआ है. वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस हुआ है तो जितना चेंज वेरिएबल कॉस्ट में हुआ है उतना ही चेंज मैं सेल्स में करूंगा तो मेरा पीवी रेशियो इज मेंटेन. ओके, तो कितना आएगा? कम ऑन, फाइंड द सेलिंग प्राइस. कम ऑन. आसान था बेटा. 62.5. वो बोलते हैं पीवी रेशियो ऑफ 97 शुड बी इक्वल टू पीवी रेशियो ऑफ 96. So 62.5 मिला. कितना? 62.5. ना बेटा, आई विल शो यू. पीवी रेशियो 20%. Now
अगर पीवी रेशियो 97 का 20% है तो पीवी रेशियो अगर 97 का इतना है तो कैन आई से VCR of 97 will be 80%. बरोबर. Yes. अभी VCR variable cost upon selling price into 100. Eighty is equal to variable cost is 50.4 upon selling price into 100. Selling price is equal to 50.4 upon 80 into 100. So 50.4 divided by 80 into 100. 63. तो बराबर आया ना मेरा. Yeah, you said 62.5. हाँ मतलब मुझे लगता है डेसिमल का, बट मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया हाँ, था वैसे भी, no problem. डिवाइड बाय 80 into 100. Now, लेकिन इतना लॉन्ग कट होने के बजाय, इतना लॉन्ग कट करने के बजाय शॉर्टकट था कि टू हैव द सेम पीवी रेशियो, जितना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया उतना सेलिंग प्राइस बढ़ाओ. सेलिंग प्राइस ऑफ 96 60 5% 3 63. तो जैसा ये है, ये शॉर्टकट है, कंसेप्चुअल है, ये कंसेप्चुअल है, सबको नहीं आएगा. ये लॉन्ग कट है, मतलब थोड़ा मेहनत करके किया तो आ जाएगा. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको ये पूछा है, अज्यूम सेम सेलिंग प्राइस. वो बोलते हैं आप सेलिंग प्राइस मत बढ़ाओ, सेम सेलिंग प्राइस रखो 60 रुपीज का 1997 में. फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, मतलब सेल इन यूनिट्स, टू अर्न द सेम प्रॉफिट ऑफ 96. तो 96 में जितना प्रॉफिट कमाया, अगर उतना ही प्रॉफिट आपको 97 में कमाना है, कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे. और बोलते सेलिंग प्राइस को मत बढ़ाओ. तो कौन सा फॉर्मूला आएगा. फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर. या कम ऑन डू इट. तो इट गोज इन दिस मैनर. अपने पास फिक्स कॉस्ट है. यस. या अपने पास फिक्स कॉस्ट कितना है. फिक्स कॉस्ट 3 फॉर लाख. 97. फिक्स कॉस्ट फॉर 97 इज 3 लाख 3,78,000. 78. या. Profit same of 96, 2,40,000. अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढना है. 12.4. नो, सेलिंग प्राइस ऑफ 63 ना. वेरिएबल कॉस्ट will be 50.4. 9.6 will be your contribution. सो 63 का, देन सेलिंग प्राइस आपने 96 का कंसीडर करना है. ओके ओके. देखो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में. हाँ हाँ सॉरी, मैंने 97 का कंसीडर. Therefore, sales will be fixed cost 3,78,000 plus 2,40,000. 378 plus 240 divided by 50.
Answer is 64,375. Correct. So now remember 14th sum will be homework now. Okay. Similar to sum number 5. उल्टा sum number 5 difficult था. ये तो बहुत Hmm. easy है. 14th is homework. Okay. Now we proceed ahead. आगे बढ़ते हैं. Sum number 8. Question number 8, very important. Following cost and the sales of the company first half and the second half of 1998-99 are given below. Sales first half, second half, total cost first half, second half. Find out contribution to sales ratio मतलब PV ratio, break even point, annual fixed cost, break even point and margin of safety as a percentage of sales मतलब margin of safety ratio. मैं क्या करता हूं, ये टू लेवल डेटा इज गिवन, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दिया है, तो मैं 4 कॉलम बनाता हूं बेटा. फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड ईयर, एनुअल सेल्स 24 lakhs, 30 lakhs, तो ये हो गया 54 lakhs. टोटल कॉस्ट 21.8 lakhs, 26 lakhs, एक्सक्यूज मी, तो ये हो जाएगा 47.8 lakhs. तो लेट्स फाइंड आउट प्रॉफिट. प्रॉफिट भी ढूंढ लेते हैं. 2.2 lakhs, देन 4 lakhs और ये 6.2 lakhs. ओके, नाउ PVR. Now they have not given variable cost जो मैं contribution ढूंढूं. They have given me total cost. In this scenario, I assume कि ये जो भी sales change हुआ है 24 लाख से 30 lakhs हुआ है, that is only due to sales in units. That is only due to volume. Volume change होने से हुआ है. अगर ऐसी बात है तो PV ratio हम कैसे ढूंढते हैं? Change in profits upon change in sales into 100. कि जो भी चेंज हुआ है सेल्स में दैट इज ओनली ड्यू टू यूनिट्स, तो वेरिएबल कॉस्ट ही बड़ा है, फिक्स कॉस्ट तो वैसे का वैसा हुआ है. तो कंट्रीब्यूशन सेम है. ओके, कंट्रीब्यूशन भी प्रोपोर्शनेटली सेम है, वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली सेम है और सेल्स भी प्रोपोर्शनेटली सेम है. तो पीवी रेशियो सेम रहेगा. तो लेट अस फाइंड. तो चलो, चेंज इन प्रॉफिट्स 4 minus 2.2, 4 minus 2.2 is 1.8, correct. Change in sales 30 minus 24, 6 into 100, 30%, 30%, PV ratio is 30%.
Then आगे बढ़ते हैं. Now they are asking me annual fixed cost. Annual fixed cost. So can I say total cost is equal to variable cost plus fixed cost? Annual का total cost मेरे पास है सर 47,80,000. वेरिएबल कॉस्ट में ढूंढ सकता हूं सर. अगर पीवीआर 30% है तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 70%. 70% ऑफ 54 lakhs plus fixed cost 47.8 lakhs. 70% of 54 lakhs, चलो 37.8 plus fixed cost. Hence, fixed cost is 10 lakhs. Fixed cost is 10 lakhs. ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर. थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? ब्रेक इवन पॉइंट. तो चलो ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढते हैं. एनुअल का ही होता है. ओके, तो क्योंकि आपने एनुअल फिक्स कॉस्ट ढूंढा है इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि एनुअल का ही पूछ रहे हैं. 10 lakhs upon 33.30%. So that will come to 33 lakhs 33,333. Okay. Then last but not least, margin of safety ratio. तो सबसे पहले मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढना पड़ेगा. MOS is equal to sales minus break even point. Sales is how much? 54 lakhs minus 33 lakhs 33,333. So 54 33 point. So that comes to 20 lakhs 66,667. This will be your answer. आपको पूरा सम समझा है? Yes, sir. Great. Please copy it down. Yeah. Yeah. Hello. Yes. So scroll up. So now the next sum which we're gonna do is 13. A company wants to buy a new machine to replace the old one which is having frequent breakdown. It received offers from of two models M1 and M2. Further details regarding these models are given below. Installed capacity of M1 M2, okay, fixed overheads per annum, estimated profit at the above capacity, so and so. The product manufactured using this type of machine M1 and M2 is sold at ₹100 per unit. You are required to determine break-even level of sales for each model
and the level of sales at which both the models will earn same profit. तो ये सम्स है। तो सबसे पहले हमें ब्रेक इवन लेवल ढूंढना है। ब्रेक इवन लेवल के लिए देखो यहाँ पे भी दो डेटा है, तो कैसे करते हैं, प्लीज पे अटेंशन। तो हमें कॉलमनर, मॉडल 1, मॉडल 2, सेल्स। सेल्स कितना 10,000 है बेटा, और 100 पर यूनिट, तो कहना है 10 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट हमें मालूम नहीं है, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट मालूम नहीं है इसलिए कंट्रीब्यूशन भी मालूम नहीं है। फिक्स कॉस्ट मालूम है सर, फिक्स कॉस्ट है 2,40,000 और यहाँ पे है 1 लाख। तो मुझे प्रॉफिट भी मालूम है, तो फिर 1,60,000 एंड दिस इज 1 लाख। तो अभी अगर ये 2,40,000 है और ये 1,60,000 है, 4 lakhs और ये 2 lakhs, ये 6 lakhs, 8 lakhs। तो हमें सब कुछ मिल गया। तो कहना है से अभी मुझे पीवी रेशियो मिल सकता है। पीवी रेशियो ये है 40%, ये है 20%, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट 240 अपॉन 40% मतलब 6 lakhs, and 1 lakh by 20% is 5 lakhs. Now, अभी second question, the level of sales at which both the models will earn same profit. ऐसा सेल्स भी सेम होना चाहिए और प्रॉफिट भी सेम होना चाहिए, इसको कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। It is called as indifference point. The level of sales at which both the models will earn same profit. It's called as indifference point. Indifference point कैसे ढूंढते हैं? Change in fixed cost upon change in variable cost. Change in fixed cost upon change in variable cost. तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना है? 1,40,000 अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख, तो 70 लाख, 7 lakhs, 7 लाख आंसर आया। तो 7 lakhs इज द आंसर। या आप 700 दिखाओ, नो प्रॉब्लम।
सर 7 lakhs कैसे आया? ऐसा है ना, नहीं आया? नहीं मतलब 1,40,000 डिवाइड बाय 2 लाख करते हैं तो इट विल कम करते हैं मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए, करेक्ट। तो फिर 70 आ रहा है, तो 7 lakhs कैसे आया, मैं वो पूछ। वही, ओके, आई विल टेल यू। आपको ये 70% आया। यू कैन, हाँ अगर आप परसेंटेज में देखा जाए या इसको करेक्ट। करें 0.7, हम्म, तो एट 70%, इसको कहते हैं एट 70% ऑफ कैपेसिटी, at 70% of capacity, there is an indifference point. ओके इसको कहते हैं at 70% capacity, there is indifference point. At 70% capacity, it's indifferent point. Now, अगर इसको मुझे सेल्स वैल्यू चाहिए होता, अगर मुझे सेल्स वैल्यू होता ना बेटा, तो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अभी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करो प्लीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करो। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? सर यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 80 है। यस और नो? तो यस सर। डिफरेंस वुड बी 20। यस तो ये आपको देगा, अभी आंसर ढूंढ निकालो, तो 7 आंसर आएगा, एग्जैक्ट 7। तो दैट इज कॉल्ड 7,000 यूनिट। 7,000 यूनिट्स पे आपको इंडिफरेंस पॉइंट आएगा। इट इज वेरी सिंपल, इट गोज इन दिस मैनर। ये हो गया यूनिट्स में। अभी मुझे रुपीज में चाहिए, यू वांट रुपीज, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो आपको सेल्स इन वैल्यू आ जाएगा एग्जैक्ट 140 divided by 20%. So that is coming how ओके much? 7 lakhs। 7 lakhs. तो ये क्या आया? What I'm trying intending to say is, पहले अगर आपने एब्सोल्यूट नंबर लिया तो आपको कैपेसिटी पे मिल जाएगा। अगर आपने डिनोमिनेटर पर यूनिट लिया तो आपको नंबर आंसर जो आएगा वो सेल्स इन यूनिट्स आएगा। अगर आपने रेशियो लिया तो आपको वैल्यू आएगा। एज ओके सिंपल। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू लिया तो आपको हाँ कैपेसिटी आएगा। अगर आपने पर यूनिट लिया नीचे तो आपको यूनिट्स आएगा। अगर आपने परसेंटेज लिया, ओके, चेंज परसेंटेज लिया तो आपको वैल्यू ऑफ सेल्स आएगा। तो अभी हम ऐसा कह सकते हैं, तो आपको चाहिए तो आप इंडिफरेंस पॉइंट का ऐसा फॉर्मूला रख सकते हैं, चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो at 7 lakhs, both models will earn same profit. यानी अगर आपका सेल 7 lakhs का रहता है तो आप M1 लो या M2 लो, कोई फर्क पड़ता? इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज M1 और M2, आप कोई भी लो, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। What if कम एंड what if lesser? तो उसको कहते हैं क्या? क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन मैं पूछ रहा हूं, रेंज। रेंज रेंज बताओ, रेंज। तो अगर
0 से, or you can say less than 7 lakhs, less than 7 lakhs, more than 7 lakhs. अगर लेस देन 7 lakhs रहेगा तो कौन सी मशीन लोगे, और मोर देन 7 lakh रहेगा तो कौन सी मशीन लोगे? तो लेस देन 7 lakhs रहेगा तो दैट मशीन जहां पे लोअर फिक्स कॉस्ट, एंड मोर देन 7 lakhs रहेगा तो आई शुड सी लोअर वेरिएबल कॉस्ट. तो लोअर फिक्स कॉस्ट किसका है जरा देखो. तो लोअर फिक्स कॉस्ट किसका है? M2. तो अगर M2 लूंगा, कब M2 लूंगा? अगर मेरा सेल्स लेस देन 7 lakhs रहता है तो मैं M2 लूंगा. व्हाट इफ मोर देन 7 lakhs है तो आई विल सी लोअर वेरिएबल कॉस्ट. किसका वेरिएबल कॉस्ट कम है? M1. ओके, Yes, sir. ग्रेट ग्रेट. So this was the stuff. ओके, अभी Yes. आगे बढ़ते हैं. So मुझे नोट डाउन करना है. ओह आई एम सो सॉरी. इतना तो नोट डाउन, ऊपर वाला पार्ट तो हो गया रहेगा ना बेटा? नहीं किया था ना सर. ओके, या प्लीज. Just yeah. Fine. Now we shall proceed ahead. हम धीरे धीरे ये यहाँ से, ये सम से हम ये ऐसा कह सकते हैं कि हम ग्रुप 2 की ओर चले आए. Yeah, now let's do question number 9. Okay, question number 9 बेटर रहेगा. A company produces 30,000 units of A and 20,000 units of B. The sales value and the cost of two products are as follows. Sales value 7 lakh 60, direct material 1 lakh 40, direct labor 1 lakh 90, factory overheads is 1 lakh 90, and administrative selling overheads is 1 lakh 20. 50% of the factory overheads are variable and 50% of administrative overheads and selling overheads are fixed. मतलब बहुत सिंपल है, फैक्ट्री ओवरहेड्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड्स ये दोनों जो है वो 50-50% है सेमी वेरिएबल, मतलब 50% फिक्स्ड और 50% वेरिएबल. देन अभी क्या बोलते हैं, द factory overheads are charged in the ratio of direct labor and administrative selling overheads are recovered at a flat ₹2 per unit for A and 3 per unit of B. Additional data. Then due to fall in demand of above products, क्योंकि above product का demand गिर गया है, okay, company has a plan to diversify and make product C using 40% of the capacity. It has been estimated that for C, direct material and direct labor will be 2.5 and 3 per unit. Other variable cost will be same as applicable to product A. The selling price of product C is 14 rupees per unit and production will be 30,000 units. Assuming 60% capacity is used for manufacturing A and B, calculate present cost and profit.
cost and profit after diversification and give your recommendation whether to diversify or not. तो पहले तो हमें कॉस्ट शीट बनानी है ए और बी की, और ये बताना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज। फिर हमें ये बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन, और फिर कमेंट करना है क्या हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए या नहीं। तो चलो लेट्स डू इट। मैं आपको आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। मुझे ए और बी का बाइफर्केशन करके मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट वाइज बताइए प्लीज, आई एम गिविंग यू टाइम। अभी इसके लिए मैं एक्सेल यूज करूंगा तो वो बेटर रहेगा। Yes. Yeah, let it be. I'll do it here only. तो A, B total units 30,000 units, 20,000 units, then it goes ऐसे, ये rupees and this is per unit, rupees per unit, and this is only rupees. Sales less direct material, direct labor, variable factory overheads, variable administrative overheads, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन Correct. लेस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, fixed factory overheads and fixed administrative overheads, factory overheads, fixed administrative overheads, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। मेरा बॉक्स तैयार है। Yes. अभी मुझे क्या क्या दिया है, मुझे टोटल दिया है सर 7,60,000, direct material is 1,40,000, direct labor is 1,90,000, variable factory overheads 1,40,000, $1,90,000, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 50% है, तो 1,90,000 का 50% कितना होता है 95. ओके, एंड 1,20,000 का वो भी 50% है, तो वो कितना हो जाएगा 60,000। तो चलो मैं कंट्रीब्यूशन ढूंढ निकालता हूँ। 7,60,000 माइनस 1,40,000 माइनस 1,90,000 माइनस 95 एंड माइनस 60, 2,75,000। Okay. अभी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स है 95 and 60,000 minus 95,000 minus 60,000, that comes to 1,20,000.
अभी मुझे प्रोडक्ट वाइज ढूंढना है सब कुछ। तो बहुत सर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्रोडक्ट का। सेलिंग प्राइस 12 रुपीज, 20 रुपीज, 12 rupees for A and 20 rupees for B. Correct. तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3,60,000 and 4 lakhs. ये, तो 3,60,000 and 4 lakhs। चलो ना मुझे ये दिया है, मैं मटेरियल और लेबर नहीं ढूंढ सकता हूँ क्योंकि वो आप, मेरे पास मटेरियल भी नहीं है, मेरे पास लेबर भी नहीं है, तो मैं एज ऑफ नाउ ये डेटा नहीं यूज कर सकता हूँ। आगे क्या दिया है, फॉर बोथ द प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस इज 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर। मेरे पास सेलिंग प्राइस है तो मैं आराम से डायरेक्ट लेबर ढूंढ सकता हूँ। तो चलो लेट्स फाइंड आउट। सेलिंग प्राइस इज 400% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो कहना है से इसका मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4 इंटू डायरेक्ट लेबर। तो क्या मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट लेबर, इसका मतलब ये हो गया डायरेक्ट लेबर इज सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 4। Correct. तो चलो ए का ढूंढ लेते हैं। ए का डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3, एंड बी का डायरेक्ट लेबर 20 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5। Fine. तो चलो मुझे मिल गया डायरेक्ट लेबर 3, 5, तो 90,000, 1 लाख। तो अब मैं ऊपर वाला डेटा जो मैं अब यूज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट लेबर है तो मटेरियल आ जाएगा। अभी डायरेक्ट मटेरियल इज टू डायरेक्ट लेबर, मतलब डायरेक्ट मटेरियल अपॉन डायरेक्ट लेबर इज इक्वल टू 2/3 फॉर ए। तो कहना है से अगर ऐसी बात है, डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू 2/3 इंटू डायरेक्ट लेबर, ये उधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, Correct. तो डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3, तो 2 आ गया। सिमिलरली डायरेक्ट मटेरियल अपॉन डायरेक्ट लेबर is 4/5 for B. So direct material is equal to 4/5 into direct labor. Therefore direct material is equal to 4. तो मुझे मिल गया 2 and 4, 2, 4, तो 60,000 and 80,000। ओके, अभी क्या क्या दिया है सर, अभी ऐसा बोला है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी आपको रेशियो ढूंढ निकालो किसका और किसका, फैक्ट्री ओवरहेड्स का डायरेक्ट लेबर के साथ रेशियो ढूंढ निकालो। जरा देखो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है 1,90,000, और टोटल डायरेक्ट लेबर कितना है बेटा, सर वो भी 1,90,000 है। दैट मीन्स इट इज 1:1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर। तो इसका मतलब ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ए is equal to 3, factory overheads for B is equal to 5। अभी दोनों सेमी वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स is equal to वेरिएबल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स is equal to fixed factory overheads is equal to 1.5।
सिमिलरली वेरिएबल यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2.5। चलो मिल गया सब कुछ, 1.5, 2.5 और यहाँ पे भी 1.5 और 2.5। चलो ढूंढ निकालते हैं। ओके 45,000 और 45,000, it is not 45,000, it is 50,000। ओके और सेलिंग ओवरहेड्स का उनका तो पर यूनिट दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे 50-50% मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे 1.5। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000। So now let's find the contribution per unit. बहुत सिंपल है, 12 minus 2 minus 3 minus 1.5 minus 1। तो मेरे हिसाब से पर यूनिट आ रहा है 4.5 और यहाँ पे 20 minus 9 minus 4, 7। चेक करो। ओके तो 7 into 20,000 is 1,40,000 and 4.5 into 30,000 that comes to 1,35,000। Correct। 1,35,000 minus 75,000, 60,000, 60,000, 1,20,000। This is what I got an answer। क्या आपको पूरा समझा है? ये सर पूरा समझा मुझे। Thank you। This is your cost and profit before diversification। तो जस्ट ये कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रेजेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट पहले कॉपी कर लो। हाँ ओके सर, या I'll just note that. That, fine sir, fine, yeah. Now we will do cost and profit after diversification। अभी डाइवर्सिफिकेशन कैसे, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है no increase in fixed cost but increase in प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बढ़ाना लेकिन फिक्स कॉस्ट को वैसे का वैसा रखना। मतलब एग्जिस्टिंग यूनिट्स, इट मींस decrease the production of existing units and introduce new product। Introduction of new products। Is that very clear? Now यहाँ पे क्या किया है, 40% ऑफ कैपेसिटी कम कर दिया है। तो प्रेजेंट existing A
एग्जिस्टिंग ए 30,000 है, रिवाइज्ड माइनस कर दिया 40%, 12,000 कम कर दिया, तो अब कितना बनाएंगे? 80,000 रिवाइज्ड। सिमिलरली बी मैं अभी क्या करता मालूम है, ए बी एग्जिस्टिंग 30,000 20,000 माइनस कर दिया 40%, 12,000 8,000, तो रिवाइज हो जाएगा 18,000 12,000। और इसी साथ में नया सी आ गया। सी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढो प्लीज। सेलिंग प्राइस, न्यू प्रोडक्ट सी, न्यू प्रोडक्ट सी का सेलिंग प्राइस कितना है सर? न्यू प्रोडक्ट सी का सेलिंग प्राइस है 14 रुपीज। डायरेक्ट मटेरियल सर 2.5, डायरेक्ट लेबर 3। अभी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स and variable administrative overheads, that will be same as applicable to A। जरा देखो, other variable cost is same as applicable to A, तो 1.5 and 1, 1.5 and 1, तो माइनस करके कंट्रीब्यूशन ढूंढ निकालो। चलो 2 3 5 6 7 8, 14 minus 8 is 6, करेक्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं नया कंट्रीब्यूशन ढूंढूंगा। नाउ कॉस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन, ए बी सी टोटल यूनिट्स 18,000 12,000 और सी का दिया हुआ है कितना? सी का बोला है कितना यूनिट्स? 30,000। तो सेल्स सेलिंग प्राइस 12, 18 into 12, 2,16,000, 12 into 20, 2,40,000, and 30 into 14, 4,20,000. 8,76,000. 8,76,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ लेना, लेकिन कंट्रीब्यूशन दिया है तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6, तो 6 into 30,000, 1,80,000. What is the contribution of B? B का 7 है और 4.5, B का 7 है तो 12 7 था 84,000 and 4.5, 4.5 into 18,000, 81,000. Total fixed cost
345. 81 plus 84 plus 180. 345. Now 216 minus 81, 135. Then 240 minus 84, 156. And 420 minus 180. 531. Less fixed cost. फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा. फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, या आप दोनों को क्लब कर सकते हैं. तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा. कितना है? 95 and 60. 95 and 60 is 155 if I'm not wrong. 155. 345 में से माइनस करता हूँ 190. कहना है से प्रॉफिट बढ़ गया. प्रॉफिट बढ़ गया तो वी शुड डू डाइवर्सिफिकेशन. अभी सर फिक्स कॉस्ट यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज डाल सकता हूँ? द आंसर इज यस. सी ने 40% ले लिया है. 40%. 40% मतलब 40% ऑफ 1,55,000. 1,55,000 का 40% इज 62,000. अभी व्हाट वाज द ओरिजिनल cost, fixed cost of A? Original fixed cost of A was 45 and 35, that is 75. उसने अपना प्रोडक्शन 40% कम कर दिया तो वो सिर्फ 60% बेर करेगा. तो इनटू 60%, वो सिर्फ 60% बेर करेगा. क्यों? क्योंकि उसने यूनिट्स कम बनाना चालू किया. तो 45,000 बेर करेगा. बी का फिक्स कॉस्ट था 80,000. वो भी उसने भी अपना 40% कम कर दिया, यानी वो भी 60% कॉस्ट ही बेर करेगा. 48. One second please. Okay, तो 48,000. नाउ आप ऐड करके देखिए. 48 प्लस 45 प्लस 62, 155. अभी आप सबका इंडिविजुअल ढूंढ निकालिए. 81 माइनस 45, 36. 84 माइनस 48, 36. And 180 minus 62. तो ऐड कर देता हूं 190. परफेक्ट. तो क्या आप कमेंट क्या दोगे? गिव योर रिकमेंडेशन. सिंस बिकॉज प्रॉफिट्स आफ्टर डाइवर्सिफिकेशन is more. Okay, we should diversify. We should diversify. Have you understood? Yeah. Yes, Please sir. Yeah. please take this sum now. Yeah. Copy कीजिए please. So see you in the next lecture. Thank you very much. God bless you all. Okay. Thank you, sir. Yeah.